So, hello everyone. Welcome once again to my YouTube channel. So, today's video is about one of the dream college of every student, that is IIT Madras. And we have Shubhodip with us. Today, he is going to guide you all regarding many more things of IIT Madras, whether it is about curriculum, campus life, mess, hostel, and many more things. So, stay tuned. Hi Shubhodip, can you please introduce yourself? Hi Mansi, glad to be here. So I am Shubhadeep. I have done my bachelor's from Government College of Engineering and Ceramic Technology. Then, since it is also a tier 3 college, so then I thought of pursuing GATE. Then I did my coaching from Go Classes, as you can find it on my LinkedIn also. Then I ranked with AIR 229. Then I pursued my master's from Indian Institute of Technology, Madras. I did an internship at Qualcomm. Then right now I also got a full-time offer from Qualcomm, and right now I have almost partially graduated because my graduation is coming on July. So that's it about my journey and introduction. Great, great, Shubhodit. So, can you give overview of your MTech curriculum and difference between TA, RA, MS? Many more confusion. Like बहुत लोगों को हो रहा है कि IIT मद्रास में क्या है, RA है, MS है, कौन सी चीजें है? So there is no such concept of such as RA and RAP as all. Like there are many streams in IIT Bombay, which like generally people confuse with Madras. In Madras, we have only two parts. Either it is a TA or either you have a MS. MS is अच्छा, a completely research stream, whereas MTech is kind of academic and professional oriented kind of a stream. So in MTech, till our batch, that is the 2023 batch, you had to complete 8 courses overall in your 2 years, uh, with some condition that is you can do, you have to complete 84 credits. That is हम्म, 7 subjects in first year. Then to get the master's project or the MTP, you can get it at your like preferred guide and all. Then you have to contact the guide. Like the system is like this: you complete 7 courses, at least 7 courses, or 8 courses is also fine. At least it suffices the eligibility of getting an MTP. Then you search for your guide. Then you finish your like MTP, and at the end of 2 years, you need to finish 8 courses. But this was okay, still 2023. But right now, the number of courses have been increased by one. So in हम्म, first year, you need to finish now 8 courses, and one courses can be done in like generally my juniors are doing, as far as I know, in the हम्म, format of 4 plus 4 plus 1. Like we did in the format of 4 plus 4 plus 0 or 4 plus 3 plus 1. But our juniors are right now currently doing 4 plus 4 plus 1 because 5 courses in a single semester is like quite hectic for any student. yeah. So, And is there for a any like MS, okay, yeah, yeah, bouquet courses, and is there any kind such things like you need to complete AI pool, theory pool, system pool? yeah, yeah. So like you have to complete 2 courses from each pool. Like there are 3 pools: system pool, theoretical computer science pool, and intelligent system pool. So you need to complete 2 courses from each pools, and then you can like rest manage. This was also introduced in 2024. This wasn't present until अच्छा, 2023. So like in अच्छा, 2024, many things have got changed. So yeah, that's it. And for MS candidates, you need to complete 5 courses in your first year itself. And हम्म, like then your guide will give you what courses you need to complete. Like that, I cannot say what courses you will do and all, but that your guide will tell you about it. Like if you are under a systems prof, you mostly have to complete system courses. If you are under some AI prof, then you have to complete some intelligent system courses. And like theoretical computer science, the same goes for that. And then you have your project. And yeah, that's for the okay. courses. So, like, how is the placement comparatively for MS? Like, is it equal to MTech or lesser than MTech? Do you have any idea? Like yeah, like the placements for MS, I would say, is rather less as compared to MTechs because many companies kind of prefers only MTech Yeah. students more to MS students. But if there is kind of some research role,
For example, Dolby Digital, that's a very big company. You must have heard about that. So that came with a very handsome package to our college. It Mm-hmm. only allowed MS students and PhD students only. So like some companies specifically are there who just take for the MS candidates, but generally MTech students gets preferred more rather than MS. Yeah, definitely. So since you also told like you got internship at Qualcomm, so basically internships are allowed at IIT Madras, right? Yes. So can you just tell how you prepared for internship and how many people in your batch got selected for internship at different companies? Okay. So the internship scenario is like this. When you come here to IIT on day one, like when you arrive here, I arrived at in 24th July of 2023. So that day only our seniors formed a group called the internship group of 2023-2025 batch. And Okay. from that day, like the companies keep starting coming from May end to June itself. So the Me and internship already get, yeah, exactly. So okay. like the BTech people who are already in the college, they already sit for the sit for the internship. Like uh, y- I can I shouldn't say I assure you, but you will miss many big companies. For example, Google, Hmm. Microsoft generally goes away until you come here. Ah, So, but don't worry, you will get big companies like Uber, Amazon. They come generally. Qualcomm, they will come generally in the later half of the this course. But HFTs and like big fangs, they generally come during the May, and you won't be present. So, coming to the main part, that is when you come here on the first day itself, your seniors will register you for the internships and they will keep sending you the links for where you can apply and all. And it goes until your first year. That is May of 2027, it would be. Because, okay. no, May of 2026, it would be, sorry. Yeah. May of 2026, yeah. So, starting from July 2025 till May 2020, this is your entire internship phase. And coming to preparation, like as all we know, like since you are doing it, you obviously don't have a very strong professional background in your Hmm. resume. So, but at least ensure that your academics are strong because you are just coming from a very big exam, national exam. So please Exactly. ensure that your academics are very strong. You must have done at least one BTech project. The interviews which I have given, at least they just want to see the interviewers because in internship they generally don't have many very big kind of a hope or like what should I say? The exact word I'm not getting it. Like from you, the expectation is not that great as compared to a placement because in placement the expectation is very high from you. In internship, since this is a temporary role of 2 months, they just want to test you. They have a less expectation as compared to a full-time intern. So if you are able to explain everything in your resume from top to bottom, then they generally hire you. But just don't lie anything in your resume. Like if you don't have the skill and still you are like just blabbering some random skill that you don't even know, you will Fall get into trap. beaten in. Yeah, exactly. So yeah, that was like I did nothing specialist for preparation. I just tracked down the GFG links of every company what they have done in a internship role and just prepared accordingly. Okay. So how many people from your batch got internship? Our batch, almost 53 people sat for internships. Uh, Mm-hmm. I think around 35, 36 got internship. I don't know the Nice. exact number, but it was Nice. around that. And like what was the ratio for PPO conversion? PPO conversion ratio was very less. One IBM PPO got converted, two IBM PPO got converted, one Uh-huh. Amazon PPO got converted, and Mhm. two Twilio PPO got converted, and one Qualcomm PPO got converted. Like around seven. Like rest, almost the entire batch sat for the placement. But still, I heard placements of IIT Madras was really, really very good this time Yeah, yeah, compared this to time, other yeah. IITs. It was a top. IITs, exactly. Yeah, exactly. So yeah, like what was the last year cutoff for admission at IIT Madras, if you Uh, remember? like
I cannot exactly tell you the cutoff because again this is a 2024 thing Yeah, it because varies, it but is the approx. yeah, but like it again depends on the category. But if you are a general candidate, try to get a rank under 100 to be utmost sure because even because when it was our year, our total strength of IIT Madras is around 63. But due to the formation of DA department, the seats got divided in 47 and the rest of the seats. So like it got split down. So that's why the number of seats have got reduced. So I should say like if you are aiming for IIT Madras, you should have a rank under 100. Okay. So when placement exactly starts around like OA, I guess in IITs जल्दी होते हैं ना थोड़ा OAs in October and November kind of. हाँ, Can you सितंबर just give सितंबर एंड्स जनरली स्टार्ट हो जाते हैं. ओके तो उसका थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू बता सकते हो कि क्या मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी एंड व्हाट वाज द सिनेरियो इन योर कॉलेज ड्यूरिंग प्लेसमेंट. हाँ, सेम वही सेम उसी बात पे फोकस कर लाइक मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं था कि मैं कोड फोर्सेस इतने का हूँ मैं उतना मतलब मेरे क्लास में है बहुत सारे बंदे जिनका इतना अच्छा अच्छा कोड फोर्सेस प्रोफाइल है बट पर्सनली मैं उतने हाई प्रोफाइल का नहीं था सो फुल और उसके ऊपर इंटर्नशिप से आ रहा था मेरा पीपीओ कन्वर्ट नहीं हुआ था हम्म. तो मुझे प्लेसमेंट बैठना था तो फिर सीनियर से पूछा फिर मैंने स्ट्राइवर का पूरा शीट खत्म किया था उसके साथ नीट कोड का जो 150 वाला शीट है हम्म. वो वाला भी थोड़ा थोड़ा किया था और ये सब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एटलीस्ट जो मुझे लगा कि मैं रेगुलरली कॉन्टेस्ट दिया था मैंने लीड कोड या का हाँ और उससे जीएफजी बहुत का हाँ इम्प्रूव काफी फर्क उससे पड़ा था. उससे उससे काफी इम्प्रूव हो क्योंकि जनरली शीट करने से क्या होता है कि मतलब आप अगर रुक जाते हो इट्स लाइक सॉल्विंग काइंड ऑफ पीवाई क्योंकि आप जब अटक हाँ जाते हो कहीं पे देन यू आर लाइक उसी प्रॉब्लम पे स्टक हो आप 1 घंटे ले रहे हो 2 घंटा ले रहे हो आप सॉल्व कर दोगे कभी ना कभी बट ओए में यू हैव अ फिक्स टाइम राइट सो यू कांट लाइक गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन तो लाइक यू नीड टू लिमिट योर थिंकिंग एबिलिटी एंड जस्ट लाइक वो जब प्रेशर आता है वो टाइम का then हाँ. like that ignition hits and you will work very efficiently so that's why contests are more important as I should say. एंड हाँ कंसिस्टेंसी से बहुत इम्प्रूवमेंट आता है लाइक मैं भी एवरेज ही हूँ कोडिंग में तो मेनी मोर पीपल लाइक बहुत लोग जॉब एक्सपीरियंस के साथ आते हैं उनको कोडिंग भी मे हाँ बी बहुत अच्छे से आती है बट इफ लाइक एवरेज पर्सन जो भी लाइक वीडियो देख रहा है इफ एनीवन इज एवरेज इन कोडिंग लाइक गेट हाँ प्रिपरेशन की है तो ऑब्वियसली कोडिंग का टाइम इतना नहीं मिला होता ऑब्वियस है तो हाँ अभी क्या मेक करना सेंस है आगे तो कंसिस्टेंटली लाइक 1 1.5 साल है आपके पास तो अच्छे से कोडिंग करो हाँ फिर हाँ सब इक्वली है प्लेसमेंट के टाइम ऐसा कुछ नहीं है हाँ कि जॉब हाँ वाले हैं जिसका मतलब हाँ जिसने कोड फोर्सेस किया है सब मैटर इतना नहीं करता है टू बी हाँ ऑनेस्ट. प्लेसमेंट के टाइम इंटरव्यूज में बहुत सारी चीजें मैटर करती है लाइक एट द कम्युनिकेशन एंड ऑफ द डे स्किल्स मैटर इतना ही करते हैं कि आप प्रोजेक्ट्स. वो एक क्लियर कर पाओ एग्जैक्टली हाँ हम्म. प्रोजेक्ट्स आपका सीजीपीए ट्राई टू कीप इट अबव 8.5 आई एम टेलिंग टू एवरी गाय हु इज जॉइनिंग आईआईटी मद्रास दिस टाइम ट्राई टू कीप द सीजीपीए अबाउट 8.5 क्योंकि नहीं तो मतलब अच्छा. कभी कभी रोना 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 भी मैंने देखा है बहुत लोगों का कि मतलब शॉर्टलिस्ट आ नहीं रहे पर 8.5 वाले कंसिस्टेंटली शॉर्टलिस्ट आ रहे हैं मतलब अच्छा. 8.5 से कम वालों का शायद प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं कोडिंग प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है टिल वो सीजीपीए के वजह से मतलब कहीं ना कहीं पे वो क्रैक करने में वो प्रॉब्लम हो रहा है तो कीप अ 8.5 over CGPA ट्राई टू कीप एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड दैट रोल मतलब अगर एचडी है तो कोई हम्म. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट अगर एआईएमएल रोल है तो एआईएमएल का एक एग्जैक्टली. प्रोजेक्ट और क्योंकि आईआईटी या फिर किसी भी कॉलेज में तुम अगर जा रहे हो तो एट द एंड ऑफ द वो एकेडमिक्स प्रोजेक्ट जो होंगे वो सबके सेम होंगे तो हम्म. स्टैंड आउट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कुछ होने चाहिए यूनिक. कि दिस या एग्जैक्टली दिस मेक्स मी डिफरेंट और अगर इंटर्नशिप आपके पास है वो तो बहुत बड़ा बूस्ट होता है अगर किसी मेजर कंपनी से आपने इंटर्नशिप करके रखा है तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स फैक्ट करते हैं कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता कि आई हैव अ वेरी गुड कोडिंग प्रोफाइल इन कोड हाँ फोर्सेस देन आई एग्जैक्टली. विल गेट अ शॉर्ट लिस्ट if you have a coding profile that's very good that's a very big plus point you need a यस. good CGPA good coding profile good project everything या. everything you need to be good to get a short list like आपको एचआर का
आई बॉल्स को अट्रैक्ट करना है कि सी एच आर आई हम्म। हैव दिस थिंग्स विच द अदर कैंडिडेट लैक्स, so I think I am a better fit for this role, then they will call you for the OS. इसमें रेज्यूमे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये देखा है मतलब Exactly. कि कुछ कंपनीज है जैसे गूगल है तो लाइक दे हैव इन माय कॉलेज पर्सनली, लाइक दे हैव शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन रेज्यूमे, नॉट बेस्ड ऑन कि कितने लाइक क्वेश्चंस, कुछ लोगों के बहुत कम हाँ, सॉल्व हुआ था फिर भी दे शॉर्टलिस्टेड क्योंकि शॉर्ट रेज्यूमे लिस्टेड है। बहुत अच्छे से बनाया था। तो ये हाँ, भी इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट्स अच्छा गूगल है। में हाँ, हाँ, गूगल में आई फील की कोडिंग कोडिंग प्रोफाइल मैटर करता है, वो लोग वहां पे कोडिंग हाँ प्रोफाइल वो तो, देखते हैं। हाँ कोडिंग, हाँ हाँ, मैंने ये भी नोटिस किया है कि जिन लोगों ने लाइक लीड कोड का लिंक ऐड किया है या कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स किए हैं उन सबका शॉर्ट लिस्ट आया है। तो ये सब चीजें भी मैटर करती है। और मतलब कुछ लीडरशिप का भी मैंने नोटिस किया कि कुछ ऐसे रोल लिखे थे उन लोगों का भी ऐसे शॉर्ट लिस्ट आया था। तो थोड़ा बहुत आपने जो भी किया है रेज्यूमे में सब अच्छे से लिखो तो दे विल मे बी लाइक यूनिक प्रोजेक्ट बना हो, जैसे सिस्टम का कुछ प्रोजेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड का प्रोजेक्ट है तो थोड़ा अलग आएगा, लाइक दे विल गेट सम डिफरेंट हाई चांसेस फॉर सिलेक्शन। तो मेक या नोट इट ट्रू। कि रेज्यूमे भी अच्छे से थोड़ा करो। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि लिखा है तो आता नहीं है, रेज्यूमे में लिखने के हाँ, बाद यू शुड बी अवेयर कि क्या किया है तुमने प्रोजेक्ट में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें तो बहुत अच्छे से प्लेसमेंट के लिए करनी पड़ेगी। एंड आई हाँ, गेस ड्राइवर ए टू जेड शीट सफिशिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सफिशिएंट, हाँ, क्योंकि वो कोड स्ट्राइवर के टू फोर्सेस जेड करो शीट या में, ऐसा। हाँ, वो आप आपके ऊपर है, आप वो अगर करोगे तो एग्जैक्टली, आप कर ऑब्वियसली पाते हो तो दैट्स अ बेस्ट। कर दैट दैट्स वेरी गुड, आप अगर कर पाते हो, क्योंकि मतलब वो भी एक बहुत ही यूनिक हाँ बनाता है आपको कि आप कोड फोर्सेस पे कोडिंग करते हो। पर जी, मोस्ट ऑफ द एमटेक्स मैंने टाइम देखा है, मिलना चाहिए। मतलब वो टाइम नहीं मिलता या फिर वही। कंसिस्टेंट नहीं होते कि ट्राई नहीं करूंगा। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वो लोग तो फोड़ते हैं। ठीक है, वो हाँ तो मैंने बिल्कुल। देखा ही है, मेरे मेरे क्लास के जो बंदे मतलब इस टाइप के पार्ट्स में कंसिस्टेंट है, उन्होंने बहुत अच्छे मेरे क्लास प्लेसमेंट में फोड़ा भी है। ऐसे बहुत लोग थे जो सी हाँ, एस शीट एंड वो सब चीजें कर रहे थे। तो हाँ, वही। मतलब जो पहले पर से कोडिंग अच्छा है तो वो तो एक हाँ, लेवल और ऊपर करेंगे ही हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली। उनको भी कॉम्पीट करना है, बट डोंट हाँ, थिंक कि कुछ ऐसे मतलब सब हो जाएगा। हाँ, और फिर लाइक कैन यू गिव सम ओवरव्यू स्टेट्स क्या थे आपके कॉलेज में? आई प्लेसमेंट डिडंट स्टेट, गेट इट। प्लेसमेंट स्टेट्स, प्लेसमेंट स्टेट्स मतलब? एवरेज मीडियन मतलब ओके, ऐसे। स्टैट्स, ओके। तो हाँ। प्लेसमेंट, इस बार का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा था, लाइक आवर 99% ऑफ आवर बैच गॉट प्लेस्ड विद इन डे 3 ओनली। सो आईआईटी में प्लेसमेंट ऐसे टाइप्स के होते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3 अलग हम्म। अलग स्लॉट्स होते हैं, हर दिन दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। तो उस टाइप से डे 3 के अंदर 99% का प्लेसमेंट हो गया था। इस बार का एवरेज एज फार एज आई नो इज अराउंड 35 नाइस। CTC, and the basic is almost 20, touching 20. ओके सो एकेडमिक की बहुत सारी चीजें बात हो गई, तो लेट्स कम टू नॉन एकेडमिक थिंग्स। हाउ इज कॉलेज लाइफ? मतलब इज इट वेरी हेक्टिक या फिर टेक फेस्ट एंजॉय कर? First year, I should say first year is hectic. Like the thing should say is you need the right kinds of friends to manage हम्म। everything. Like अगर मतलब मैंने बहुत सारे इंटरनल राइवलरीज भी देखे हैं कि इनके साथ इनकी नहीं बनती, इनके साथ नहीं बनती। आपको अगर सही ग्रुप अगर मिल गया, लाइक इफ यू गेट द राइट ग्रुप, देन लाइक इवन द हेक्टिक कॉलेज लाइफ फील स्मूथ। पर हाँ अगर आपको सही ग्रुप नहीं मिला, उस पर डिपेंड करता है कि फिर तो अगर है। सही ग्रुप मिला, देन क्योंकि असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स ऐसे टाइप के होते हैं आपने कभी देखे नहीं होंगे। लाइक हम्म। let's for example, when I got my first machine learning assignment, it was like, how do we even do this? Like we don't even एग्जैक्ट। know. So that's where a good discussion teams comes very handy. If you have a good set of friends who can discuss very effectively, like अब फिर जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर थोड़ा चिल मार के आ गए, like that is a set of friends that makes a difference between whether your college life is hectic or your college life is smooth. But हाँ, फर्स्ट ईयर आई शुड से फर्स्ट ईयर हेक्टिक होगा, क्योंकि 4 4 8 कोर्सेज आईआईटी लेवल के हेक्टिक होंगे ही होंगे। वो तो है।
हाँ बट और ग्रुप वर्क से आपको काफी फर्क पड़ता है, थोड़ा एक दूसरे को हाँ समझाएंगे एंड ऑल। बाकी हेक्टिक हाँ। तो फर्स्ट सेम तो बहुत, स्टार्टिंग में जाने के बाद। और मैं आईआईटी मद्रास का स्पेशली बोलूंगा, 3 सेमेस्टर्स बहुत हेक्टिक होते हैं, इसलिए फोर्थ सेमेस्टर चिल मारने के लिए दिया जाता है। जनरली चिल मारने के लिए नहीं, नहीं ये बाहर जाएगा पब्लिक प्लेटफॉर्म, लोग बोलेंगे तू क्या कर रहा है यार, आईआईटी के बारे में क्या बता रहा है। पर जनरली क्या हो जाता है, लाइक you work very hard in your first हाँ year, you get a एग्जैक्टली। good CGPA, then in the third semester your placement comes, you get a good placement, then when you go down into the fourth semester the motivation fades away actually. तो एग्जैक्टली वो फिर ऐसा तब होता है कि तब 3 सेम बहुत पढ़ाई की है, तो एक सेम तो एटलीस्ट लास्ट हाँ, सेम में एक सेम तो प्लेसमेंट के बाद। हाँ थोड़ा ढीला देते हैं। थोड़ा तो तो हाँ। जनरली उस सेम में सारे सारे बंदे थोड़ा ढीला देना स्टार्ट कर जाते हैं, मतलब उसमें प्रॉफ्स भी मतलब कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। तुम लोग इतना लूज काम तो करते नहीं थे, तुम लोग सीरियसली काम करते हो, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। पर वो क्या होता है ना, वो प्लेसमेंट हो एक गया तो ऐसा हाँ होता है हाँ थोड़ा। प्लेसमेंट हो गया तो वो सब कैसा एक कॉलेजेस मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तब पूरा सब लोग चिल्ल हो थोड़ा जाता है। तो हाँ एग्जैक्टली, सब लोग थोड़ा रिलैक्स होना स्टार्ट कर जाते हैं। मैं नहीं कह रहा ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है कि रिलैक्स करो, बट हाँ वो थोड़ा रिलैक्सेशन आता है अंदर अंदर। हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट ऐसे प्लेसमेंट के बाद ऐसा ही होता है कि अभी यार मतलब कॉलेज का लास्ट सेम है, 3 साल 3 सेमेस्टर लास्ट हमने बहुत ज्यादा हेक्टिक था, बहुत बहुत पढ़ाई ज्यादा की है, तो हेक्टिक है। एटलीस्ट एक सेम तो बनता है ऐसा। हाँ एक से और हम थोड़ा मतलब एंजॉय करते हैं, थोड़ा हाँ कैंपस वही घूमते हैं क्या है। हाँ एग्जैक्टली हाँ सेम हमारे में भी यही था। और हाँ फिर मेस फूड कैसा था उधर? हाँ, फॉर नॉर्थ इंडियंस इट इज थोड़ा डिफिकल्ट, लाइक थोड़ा अच्छा एडजस्टमेंट पे टाइम जाएगा। फॉर साउथ इंडियंस इट विल बी स्मूथ, आई अच्छा। एश्योर दैट, क्योंकि लाइक दे आर लाइक वेल वर्स इन दिस काइंड ऑफ फूड्स। बट इन नॉर्थ इंडियन को थोड़ा टाइम तो लगेगा एडजस्ट होने में, कि अच्छा नहीं लग रहा अच्छा खाना, अच्छा नहीं लग रहा खाना। नॉर्थ इंडियन फूड्स है, नॉर्थ इंडियन नॉनवेज एवरीथिंग इज देयर इन आईटीएम, बट द थिंग हम्म। इज एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, कि घर का खाना आप अच्छा अच्छा खासा खाना खा के आ हाँ रहे हो, देन वो यू तो गो इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज अ मेस फूड। फिर आप कहते हो कहाँ पे आ गया। फिर जब आप फुल रेगुलराइज्ड कस्टमर बन जाओगे उस मेस का, देन यू विल लाइक या दिस फूड इज फाइन, आई नीड टू ईट इट एटलीस्ट टू सर्वाइव हियर। क्योंकि हाँ खाना नहीं खाओगे तो सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होगा, सरवाइव नहीं करोगे तो लाइक प्लेसमेंट तक नहीं पढ़ोगे जा कैसे पाओगे। प्लेसमेंट? हाँ तो उधर मतलब वेज नॉन वेज का क्या ऐसे था, लाइक साथ में मेस था या फिर सेपरेट मेस, लाइक फॉर प्योर वेजिटेरियन पीपल कुछ लोग जैन या या ऐसे? yeah, everything is there, like there is some combined veg and non-veg mess also, like yeah, मतलब and if you सेपरेट भी don't है want, कि? हाँ अच्छा combined सेपरेट भी veg है। non-veg messes are there, separate Jain messes are also there, सही है फिर like तो। yeah। और मतलब टेक फेस्ट का थोड़ा बहुत बता दो कैसा होता है उधर? टेक फेस्ट ऐसे, टेक फेस्ट का आपको मेल आएगा, शास्त्र इज आवर टेक फेस्ट। तो लाइक पर्सनली मैंने टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट किया नहीं था, क्योंकि हाँ जब भी मुझे टाइम मिलता था इधर मैं रूम में सोता होता हूँ या फिर मैं कैंपस में घूम रहा होता हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइक जनरली एमटेक्स का क्या होता है ना, यू हैव जस्ट 2 इयर्स, हाँ उसमें भी फर्स्ट ईयर आपका पूरा एकेडमिक्स पे जा रहा है, और एकेडमिक्स मतलब हेवी एकेडमिक्स हो रहा है। उसके वही। साथ आपको सीजीपीए मेंटेन करना पड़ता है, उसके ऊपर अगर आपके फ्रेंड्स आपको सही नहीं मिले, देन यू विल हैव अ टफ टाइम। बट आपको अगर फ्रेंड सही मिल गए, हम लोग जैसे कभी कभी बीच घूमने चले जाते थे, तो ऐसा हम्म। मतलब लाइक सबको अलग अलग टाइप्स के रिफ्रेशमेंट्स चाहिए काम करने के लिए। हाँ बिल्कुल। टेकफेस्ट हाँ तो टेकफेस्ट ऑब्वियसली होते हैं अच्छे खासे। शास्त्र इज देयर, यू कैन पार्टिसिपेट। आपको जब कॉलेज का स्टूडेंट मेल क्रिएट हो जाएगा, यू विल गेट द मेल, you can participate and see. Like I have never participated in that, so I like can't give much light on what happens there and all, what are the events actually. हम्म। और हॉस्टल लाइफ हाउ इज इट, लाइक सिंगल शेयरिंग Yeah, डबल शेयरिंग, गर्ल्स बॉयज कुछ no, डाउट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसा था कि गर्ल्स के लिए सिंगल शेयरिंग होता है कि क्या, ऐसा कुछ? yeah. So like as you said, girls के लिए सिंगल शेयरिंग ही होगा, और बट बॉयज के लिए ट्रिपल शेयरिंग होगा। बट डोंट वरी, हाँ ट्रिपल शेयरिंग हो, बट डोंट वरी, मंदाकिनी's rooms are very spacious. So like अच्छा yeah, it might at first, like it might sound that how can we accommodate 3, but like you can stay 3 people inside that.
Like it Okay. won't be suffocated as such. The rooms aren't small; those are very big rooms. You will also have your personal almirahs. Every person will have their personal almirahs and cupboards, and Mhm. a study desk for everyone. So don't worry about any equipments shortage and all. It is built for everyone. And for girls, as you said, like it will be just a single sharing thing. Okay. So, anything you will suggest to students who are going to join IIT Madras before coming to college कि अभी कुछ करना चाहिए कोडिंग या फिर चिल करना चाहिए anything what आई your शुड thought? से कोडिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे आके जब फुल फॉर्म में किसी अच्छे कोडर के पास पड़ जाओगे, हम्म। देन उसके साथ compete हालत नहीं कर खराब हो पाओगे जाती कि हाँ एग्जैक्टली क्योंकि बीटेक विल ऑल्सो बी competing with you during the placement. तो है। वही। जनरली बीटेक सीएसी का 100% ही प्लेस 100% इंटर्नशिप लग जाते हैं. हम्म। हमारे आते आते बीटेक सीएससी के एक दो कुछ पड़े रहते हैं, और बीटेक इलेक्ट्रिकल वालों के साथ ही अच्छा। जनरली लाइक यू विल हैव द फाइट. तो हम्म। लाइक दे आर ऑल्सो वेरी कैपेबल एंड गुड एट कोडिंग्स, क्योंकि कोडिंग इज दैट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट हु एवरीवन डज, बिकॉज एवरीवन। लाइक अगर मुझे अपने कोर में जॉब नहीं मिला तो आईटी में तो मुझे एक जॉब मिलने के हाँ। चांसेस है. तो कोडिंग प्रोफाइल को सब लोग स्ट्रांग रखते हैं. तो दैट्स वाई कोडिंग तो आई विल 100% से कि हाँ कोडिंग तो स्टार्ट करना ही कर दो. और अगर उसके साथ अगर अगर कोडिंग नहीं करनी, मतलब अगर इंटर्नशिप पे उतना फोकस नहीं है कि नहीं भैया इंटर्नशिप नहीं चाहिए, आई वुड से ऐसा माइंडसेट मत बनाओ कि भैया इंटर्नशिप नहीं चाहिए. हम्म। यू नीड या एग्जैक्टली अगर एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है आपके रेज्यूमे में, इट रियली हेल्प्स अ लॉट. आई एम सेइंग 100% इट रियली हेल्प्स अ लॉट. और अगर आपकी कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है मार्केट पे, तो लाइक प्लेसमेंट्स पे किसी किसी कंपनी को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके रेज्यूमे प्रोजेक्ट्स क्या है, सीजीपीए क्या है, आपके कंपनी के ब्रांड वैल्यू पे सीधा उठा लेती है. हाँ। कि आपने ओए वोए क्या दिए कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपके कंपनी इस कंपनी से मैंने इंटर्नशिप किया है, दैट्स फाइन. द कीवर्ड इज फाउंड इन द एटीएस, इट इज डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट. तो लाइक इंटर्नशिप्स आर वेरी नेसेसरी. अगर क्रैक कर सकते हो, डोंट टेक द प्रेशर कि अगर क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे भी पर्सनली मेरे फर्स्ट सेम में मुझे इंटर्नशिप नहीं लगी थी. हम्म। मुझे अपने सेकेंड सेम के ऑलमोस्ट एंड पे, लाइक मार्च एंड पे आई गॉट माई इंटर्नशिप एट कॉलकॉम. तो लाइक अच्छा मैंने भी कॉलकॉम होप छोड़ तब भी दिया. आती थी तुम लोगों के कॉलेज हाँ में हाँ लाइक सही है। एग्जैक्टली. हाँ. So like I also like left the hope that I am gonna get an internship. Then Qualcomm came out of nowhere. Like it was an internship only for MTechs. This year ओह it वाह। also came. Yeah, अच्छा। it took me and my friend. My friend got the PPO, and it took for two different roles. One was the automotive compute system role, and one was the multimedia system role. This अच्छा। year it also came with the same roles. This year they took only the multimedia system thing. So like अच्छा। try to crack a internship. अगर internship crack नहीं होता, then that's a separate thing. Then you can prepare for placement rather. But हाँ, अगर कोडिंग बहुत नेसेसरी है, कमिंग टू द पॉइंट, आईआईटी आने से पहले कोडिंग बहुत नेसेसरी हम्म। है. अगर कर सकते हो तो गिलबर्ट स्ट्रैंग का देखो लीनियर अलजेब्रा सबने करके रखा है. तो पर गेट का जितना लीनियर अलजेब्रा है, आईआईटी का जब तुम लोग लीनियर अलजेब्रा स्टैंडर्ड पे आओगे, देन यू विल बी लाइक मैंने 10% भी अभी तक लीनियर अलजेब्रा का पढ़ा हाँ नहीं वही प्रूफ है. प्रूफ सब चीजें बहुत मैथमेटिकल भी। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट. सो उससे बेटर है कि आपने लीनियर अलजेब्रा जितना भी पढ़ा है, गिलबर्ट स्ट्रैंग का जो एमआईटी का पूरा कोर्स है, अगर आप उसे आने से पहले जितना दूर खत्म कर सकते हो. और अ, और एक प्रोबेबिलिटी का भी कोर्स है, क्योंकि जनरली आईआईटी मद्रास पे एक सब्जेक्ट ऑफर होता है लीनियर अलजेब्रा एंड रैंडम प्रोसेस. वो फर्स्ट पार्ट होता है लीनियर अलजेब्रा पे, सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी पे होता है. तो लाइक वो सब्जेक्ट जनरली बहुत लोग लेते हैं. तो ऑलमोस्ट 100% ऑफ द क्लास ही उस सब्जेक्ट को लेते हैं. आप जब आओगे, मेरे जूनियर्स तो आपके सीनियर्स होंगे, वो आपको गाइड कर देंगे उस बात पे कि मैं तो पास आउट हो रहा हूँ, मैं तो आपको कॉलेज में दिखूंगा नहीं. तो दैट्स बेटर कि आप कोडिंग के साथ ये लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस अगर करके आओ, क्योंकि ये तीन अगर करके आओगे तो मशीन लर्निंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगा. और हम्म। रेस्ट अश्योर्ड, सारे ऑल द फैकल्टीज आर वेरी गुड. लाइक इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट मेल देम. They are very busy in their research work, but still they will schedule a time to talk with you. Like whenever I अच्छा। had a doubt, I went to my HOD sir and the other professors who
taught us. अच्छी They बात है ये तो, always हाँ, gave me time. प्रोफेसर्स हाँ टाइम देते हैं इतना। सही है। हाँ तो ये सब क्वेश्चंस मेरे साइड से थे। नाउ आई विल लाइक शेयर क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने लाइक टेलीग्राम और वेरियस ग्रुप्स में पूछे थे, रिलेटेड ओके डाउट्स रिलेटेड आईआईटी मद्रास। जस्ट अ मिनट। इज इट विजिबल? हाँ। ठीक है। So first question is percentage of AIML roles offered in placement. Please tell companies which came with AIML roles. All seniors of IIT Madras working in FANG ISO have SD roles only. वो लाइक कि AIML एक ऐसा टाइप ऑफ सेक्टर है कि आपको बड़ी कंपनीज लेना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि जनरली दे सीक फॉर सम एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स देयर, तो वहाँ पे बड़ी कंपनीज लेना प्रेफरेंस पे नहीं रखती आप। तो वहाँ पे आपको जनरली स्टार्टअप्स ही मिलेंगे। तो परसेंटेज पे अगर हम लोग आते हैं, इट इज जनरली 30:70। लाइक SD इज द 70 पार्ट एंड 30 इज द AIML रोल। इस साल बहुत सारे AIML रोल्स आते हैं, मोस्ट ऑफ देम वर स्टार्टअप्स। और अगर स्टार्टअप्स पे आप अगर जा रहे हो, कीप वन थिंग इन माइंड, द एक्सपेक्टेशंस विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू Exactly. हाँ, मल्टी बहुत। मल्टीनेशनल कंपनी। एग्जैक्टली, बिकॉज इन मल्टीनेशनल कंपनी यू हैव द टाइम टू लर्न एवरीथिंग, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर उस स्टैंडर्ड का नहीं रहता कि आपको गोल्स उतने ज्यादा सेट करके नहीं दे रहे थे कि आपको इस काम को इतने टाइम के अंदर खत्म करना है। तो it is better to like start in a big firm rather than a startup. So that's about the percentage. Companies which came for AIML roles, there are many companies. I don't even remember the names, like, but there are many companies. That is it. 30% आपको आते हैं, आपको मिलेंगे चांस। Okay. So what to सेकंड। prepare to get internship in AIML, or how different are interview rounds for AIML compared to ST? इंटर्नशिप इन AIML के लिए आपको तो पहली बात मशीन लर्निंग के सारे बेसिक्स आने चाहिए, कि एक्चुअली वो कंसेप्ट क्या होते हैं, वो कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, देन ऑल। अब बेसिकली अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आता है कि सोचो कोई एल्गोरिथम है, PCA को ले लेते हैं। अब PC एल्गोरिथम जिस मैथमेटिकल कंसेप्ट, लीनियर अलजेब्रा के जिस कंसेप्ट पे बेस है, तो उसको उसको अगर आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये है हमारा आइगन वैल्यू, ये हमारा आइगन वेक्टर किस काम से आता है। फिर डीप लर्निंग का जैसे ले लेते हैं, डीप लर्निंग के कंसेप्ट से पूछते हैं, जैसे अब हो गया न्यूरल नेटवर्क किसे कहते हैं, देन कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क से डिफरेंट क्यों है। फिर ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, हम लोग को ट्रांसफॉर्मर्स पे क्यों जाना है। देन आप अगर आपको बहुत वैरायटी पे क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। और अगर मैथमेटिक्स आपको अच्छे से पता है, तो जनरली यू गेट अ एज ओवर द अदर्स, कि यू विल गेट द जॉब। And in AIML internship, they also asked probability and linear algebra for sure, कि उसके concepts भी आपको पूछे जाएंगे। तो और that's लाइक about। डीएसए भी उसमें पूछते हैं ना, एक राउंड डीएसए का भी होता है शायद। डीएसए आपको देखो, अब ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे। अगर टीम अच्छा। को ऐसा टाइप का बंदा चाहिए इमिडिएटली कि he should know everything, how to implement in like machine learning, then they won't deep dive into like DSA. But like if they are casual कि हाँ हमें जैसे एक इंटर्न एग्जैक्टली। हायर करना है, so then they might go into the DSA if you are not able to answer the AIML questions. वही। But DSA is kind of a side thing. लाइक I प्लेसमेंट won't में say ऐसी they कुछ कंपनीज आई थी कि एक राउंड एआईएमएल की कंपनी थी, फिर भी लाइक एक राउंड पूरा एचडी लाइक डीएसए पूछा था सब। लाइक हमारी कॉलेज में ऐसा था, पता नहीं मतलब। हाँ मे बी डिपेंड्स कॉलेज वाइज। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने अभी तक जितने रूल्स के बारे में सुने हैं, मतलब अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो वहां पे, देन लाइक दे ट्राई टू टेस्ट यू, कि अगर आपको टीम के किसी अच्छा। दूसरे रोल पे अगर फिट कर सके, तो देन दे जनरली आस्क DSA। पर मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि DSA पूछेंगे ही पूछेंगे, हाँ, वो लाइक तो हाँ। दीज कंसेप्ट। डिपेंड्स। हाँ, ये डिपेंड्स, ये पूरे टीम पे डिपेंड करता है कि DSA पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। क्योंकि अगर टीम को एक अच्छा सॉलिड AIML बैकग्राउंड वाला बंदा चाहिए, देन लाइक इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, दे वोंट हायर यू।
यार वो तो मेन चीज है, वो तो होना ही चाहिए सही से. So हाँ, other is how is theoretical computer science research at IIT Madras? Do MS students get into top US PhD programs मुझे like CMU Stanford? ये किसने पूछा है, मुझे सबसे पहले जानना है। मतलब थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट किस बंदे को आता है, मुझे पता नहीं। शायद उसने अभी तक शायद थियोरेटिकल कंप्यूटर का तो डीप डाइव नहीं किया, या फिर उसे लाइक गेट के मास्टर थ्योरम सॉल्व करने से उसे शायद लग रहा है कि थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस शायद इतने में ही खत्म हो जाता है। Like, आप जब मैथमेटिक्स देखोगे, आई फील लाइक थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस इज हाँ लिटरली द वही. टफेस्ट पार्ट ऑफ बहुत कंप्यूटर साइंस, एटलीस्ट टफ, आई फील। बहुत. बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि अरे हमारे कॉलेज सिस्टम्स। में ऐसे वो हाँ, पूल होता है ना थियरी बुके वाला, तो लोग हाँ, ऐसा करते हैं कि यार ये मतलब करना पड़ेगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि वो बहुत हार्ड लेवल मैथ्स भी होता है. हार्ड लेवल में थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस जनरली सब, क्योंकि वो काइंड ऑफ इतना कोर मैथमेटिक्स पे वो लोग घुस, मशीन लर्निंग भी कोर मैथमेटिक्स ही है। पर एट द एंड ऑफ द डे आपको दिख रहा है कि मैं एग्जैक्टली अगर हाँ. ऐसा लगा रहा हूँ तो मेरे आउटपुट्स ऐसे आ रहे हैं। थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में आपको कुछ दिख भी नहीं रहा, देन भाई दे कुछ विल, पता ही नहीं है क्या चल रहा है. हाँ, एग्जैक्टली, देन दे विल जस्ट रैंडमली राइट सम वेरी बिग प्रूफ, 2-3 पेज का। देन दे विल लाइक हेंस दिस एल्गोरिथम इज कन्वर्टेड इनटू दिस एल्गोरिथम। भाई कुछ क्योंकि भी प्रूफ हो एटलीस्ट, रहा है, ऐसा होता है कि क्या हाँ, चल रहा है. एग्जैक्टली, मुझे ये वाला पूछना है कि इसलिए थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में किसको रिसर्च करना है, ठीक है। या रिसर्च थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं हमारे कॉलेज में। आकांक्षा अग्रवाल मैम हो गए, निशात कोठारी सर हो गए, नारायण स्वामी सर हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। हाँ, दैट्स द रिसर्च इज वेरी गुड एट आईआईटीएम। तो डू एमएस स्टूडेंट्स गेट टॉप यूएस स्टैनफोर्ड सीएमयू? जनरली, एटलीस्ट मैंने जितने एमएस लोगों को देखे, इधर दे टेक पीएचडी अंडर द सेम प्रोफ, हम्म. क्योंकि उनके साथ उनको शायद कनेक्शन मिल जाते हैं, या फिर काम अच्छा लगने लग जाता है, या फिर दे टेक अ प्लेसमेंट। लाइक मेरे पर्सनली, मैं हमारे कॉलेज से अभी इसी साल एक एमआईटी पे एक बंदा पीएचडी करने गया है, पर अच्छा. लाइक ही इज नॉट एमएस स्टूडेंट। तो आई कांट से रादर, ये लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू। लाइक मैंने पर्सनली अभी तक देखा नहीं है कि कोई जा रहा है बाहर कोई। हम्म. So how much hectic इट is माइट that? बी इट माइट बी डिफरेंट केस फॉर अदर्स, शायद किसी ने देखा होगा, पर एटलीस्ट मेरे मैं जितने सारे एमएस वालों को जानता हूँ, इधर दे टुक पीएचडी अंडर द सेम प्रोफ, और लाइक दे टुक प्लेसमेंट्स एंड लेफ्ट। Okay, सही है. So how much hectic is IIT Madras? Like, can you tell how much marks, how much time does it take to complete an assignment? एक असाइनमेंट के लिए आपको 1 महीना मिलता है, तो लाइक यू कैन डिसाइड अच्छा. हाउ हेक्टिक इज दैट। सही है. Process of winter MS admission. हाँ, ये विंटर एमएस एडमिशन का आपको आईआईटीएम के रिसर्च पोर्टल पे Sorry. कंटिन्यूअस आपको देखते रहना पड़ेगा, किसी भी मोमेंट पे निकलता रहता है, बट जनरली अराउंड आई थिंक आपको दिसंबर आपको नवंबर दिसंबर आपको पूरा research.iitm.ac.in बोल के एक वेबसाइट है, उस पे ये ओपनिंग्स आते हैं। अब वो डिपेंड करता है उस प्रोफेसर को, अगर लेना है एमएस स्टूडेंट्स या नहीं लेना है। तो दिस इज, यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ research.iitm.ac.in उस वेबसाइट पे। देन यू विल गेट द देन यू विल लाइक नो मोर अबाउट दैट। Okay. ठीक है. So situation of research work around NLP where MTech are allowed or able to contribute. एज फार एज आई नो, एनएलपी पे काम हमारे सीएससी डिपार्टमेंट में सुतानु सर कर रहे हैं, और मितेश कापरा सर डीएसए डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। So, if you really want to know about the research work in NLP, like there is a lot of research going in NLP, you can take the MTP under them and then explore. That is better, I should say, uh, because the scope is huge. But the thing is, Mitesh Kapra sir is now only available for the DSAI department students, because he has now shifted to DSAI department, so he is not taking CAC students as of now. And Mhm. you can do ask Sutanu sir.
he is one of our faculties of NLP in the CSE department. He will be taking CSEs under you. You can ask them about what are the like scenarios or what are the possible research they are doing as of now. So, can MTech coursework students also carry out decent quality research in second year? ऑनेस्ट अगर इसका मैं आंसर दूं, द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको रिसर्च ही करना है, बी अ एमएस स्टूडेंट्स, बीइंग अ एमटेक हाँ, स्टूडेंट्स इज वेरी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू अ रिसर्च बिकॉज फर्स्ट ईयर फुल एकेडमिक्स में निकलता है, देन द थर्ड सेमेस्टर along with your MTech project and placements, it's very hectic to like manage. So if you want to carry decent quality research, you can only do it in the fourth semester. तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में जो खाली टाइम मिलता है, प्लेसमेंट हो जाता है, तो सिर्फ आप एमटीपी को लेकर ही बिजी हो। इस साल से मुझे नहीं लगता, क्योंकि एज एक कोर्स भी रहेगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर मुझे नहीं लगता कोई कोर्स देने वाला है, फोर्थ सेमेस्टर पे उसको लेके जाएंगे। तो एक कोर्स और एमटीपी के साथ आप अगर देन रिसर्च को लाइक वैल्यू कर सकते हो, बट रेस्ट आई डोंट थिंक यू विल हैव द इवन टाइम टू लाइक एक्सप्लोर लाइक हाउ मच हाई डेप्थ रिसर्च you can do. If you exactly. really are interested in research, rather than joining the MTech program, join the MS program. Then, like your faculty will also be interested to work with you because like you have the interest in like doing the research work, because it is a role of the research only. MTech is rather a like professional role. Right. So, will DSI department be able to perform as good as CSC considering it is new? We need to see this year also. Like I can't Placement, comment on this, इस but बार तो yeah, exactly. Placement इस साल होंगे पहली बार। तो बट आई एस अगर मैं इंटर्नशिप के बेसिस पे बोलूँ, बोथ आर सेम, बोथ आवर जूनियर के बैच में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका इंटर्नशिप लगा है, ऑलमोस्ट सबका। अच्छा। मैंने जितना सुना है ऑलमोस्ट सबका इंटर्नशिप लगा है। तो उनका हमारे परसेंटेज से भी ज्यादा है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर हमारे परसेंटेज से ज्यादा उनका। उनका स्टूडेंट्स भी कम है, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव गॉट इंटर्नशिप्स आर वेरी हाई। तो आई शुड से डीएसए डिपार्टमेंट सेम ही करेगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ कुछ आपके कोर्सेज ही डिस्टिंग्विश्ड होंगे, क्योंकि सीएससी, क्योंकि अभी भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर सीएससी के ही है, मतलब डीएसएआई के अलग कुछ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स नहीं है, क्योंकि आईआईटीएम का, एज एवरीवन नोज, द मेन थिंग व्हिच डिस्टिंग्विशेस आईआईटीएम फ्रॉम अदर आईआईटी इज द प्लेसमेंट टीम रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हर एक कोर्स प्रोग्राम और हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग कोर रहता है। जैसे एमटेक सीएससी का एक कोर रहेगा, एमटेक इलेक्ट्रिकल का एक कोर रहेगा, पर डीएसआई का अभी तक कोर नहीं है, तो सीएसई संभाल रहे हैं सब। तो आई डोंट थिंक कंपनीज लाइक विल distinguish very much as DSA and CSA, so I would say it will remain the same. और लाइक कोऑर्डिनेटर्स में कैसा होता है? एमटेक बीटेक से कंपलसरी होता है या फिर कुछ भी रैंडम सिलेक्शन होता है? सब बीटेक के भी आ सकते हैं प्लेसमेंट के टाइम? लाइक नहीं थोड़ा नहीं, उससे मतलब हेल्प, अगर एमटेक से है तो इट कैन हेल्प एमटेक मोर, राइट? हाँ, नहीं, हमारे हमारे एमटेक में भी मतलब रिप्रेजेंटेशन रहता है, मतलब अच्छा। रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी है। मतलब अच्छा, फिर तो फॉर्म हाँ आता है सही कि है। आपको, आप, हाँ, आप एमटेक का पीसी बनना चाहते हो, क्योंकि अगर आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा तो आप अपना वॉइस उठा नहीं पाओगे अगर वहां पे कुछ एग्जैक्टली गलत वही। होता है। एग्जैक्टली फिर अगर अगर बीटेक की वही मोनोपोली है सेम, फिर। वो मोनोपोली, अगर वो मोनोपोली आईआईटी में कभी आती नहीं, इसलिए क्योंकि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिए। इनफैक्ट एमएस सीएससी का भी कोर होता है, मतलब सिर्फ एमटेक का कोर अच्छा, नहीं होगा, एमएस सीएससी, बीटेक सीएससी, एमटेक सीएससी, पीएचडी सीएससी, सबका एक एक कोर रहेगा। सही तो है वो फिर आपको तो। रिप्रेजेंट, फिर उस कोर के अंडर आप पीसीस काम करेंगे। अच्छा, फिर तो हाँ इक्वालिटी सही है, बेटर है। हाँ, तो पार्शियलिटी किसी भी एंगल से नहीं होती, आप हम्म। पूरा मेरिट पे होता है। आप अगर मेरिटोरियस हो, देन यू विल गेट द थिंग्स डन इजीली। नाइस। डोंट सही वरी, लाइक पार्शियलिटी नहीं होगी आपको आईआईटीएम है। में, फॉर श्योर। ओके, सो आर सिंगल रूम्स प्रोवाइडेड फॉर गर्ल्स इन फर्स्ट सेम? हाँ, यही गर्ल्स का डाउट। गर्ल्स का ऑल ऑल मतलब पूरा लाइफ टाइम सिंगल रूम है उनका, बॉयज की तरह नहीं है। बॉयज का फर्स्ट ईयर शेयरिंग होता है, डबल और ट्रिपल। अगर छोटा रूम मिले आपको डबल शेयरिंग होगा। डबल शेयरिंग वाला एक्चुअली थोड़ा टफ होता है, क्योंकि मतलब वो है ही एक्चुअली सिंगल रूम, पर उस पर डबल घुसा देते हैं। अच्छा। पर ट्रिपल ट्रिपल में एक्चुअली डबल का रूम है, पर ट्रिपल घुसा, पर ट्रिपल ट्रिपल वाला रूम बहुत बड़ा होता है। हम्म। पर बॉयज का डबल शेयरिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और अच्छा। गर्ल्स का तो पूरा पूरे मतलब पूरे कोर्स वर्क में सिंगल रूम से।
सही है. So how are the professors in terms of addressing doubts, and overally also how is Bala Raman sir nature? Would you recommend doing under project under them? See, if you take a very big faculty who has a very big name associated with him, most of the time you won't like they won't even give that time to you because they are associated with many other Hmm. high kind of research. Like Balraman sir को अगर ले ले, they are he is the face of IITM, I should say in AI. लाइक सब अच्छा. लोग जानते हैं कि बाला सर हाँ. है, तो पर बाला सर का रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बाला सर ऑलमोस्ट हर एक टाइम ही किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस में बिजी रहते हैं। पर आप अगर कुछ एक बड़ा अच्छा खासा प्रोजेक्ट करना चाहती है, यू वुड वांट कि आपका गाइड आपको टाइम दे। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि आपको अगर रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता, तो देन यू वुड वांट योर फैकल्टी टू गाइड यू। बलरामन सर इज नो डाउट वेरी गुड, पर rather than like taking a project under a very big faculty, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिजी रहेंगे और आपको किसी पीएचडी के अंडर काम करना रहेगा, और वो पीएचडी भी अपने काम में बिजी रहेगा। तो लाइक आप थोड़ा स्ट्रगल तो करोगे, हाँ, कर तो लोगे ऑब्वियसली, बिकॉज अगर कर लिया तो दैट्स वेरी ग्रेट कि आपने इसने बड़े प्रोफेसर के अंडर काम किया है। पर द थिंग इज, गाइड से टाइम कम मिलेगा कंपेरेटिवली। Right. और Okay. So, डाउट्स का मैं ऑलरेडी बोला है, एवरीवन इज वेरी गुड इन डाउट्स। अगर किसी को hmm. कभी भी प्रॉब्लम होता है, कभी भी आप एक मेल कर दो उनको, या फिर क्लास के बाद ही कांटेक्ट करो। अगर क्लास के बाद उनके पास टाइम है, वो लोग ऑब्वियसली तभी डाउट क्लियर कर देंगे। और अगर टाइम नहीं है, दे विल जस्ट से टू मेल यू, दे वो अपना एक टाइम से टाइम निकाल के आपको फुल टाइमली डाउट क्लियर कर देंगे। एवरी प्रोफेसर इज वेरी गुड, वेरी गुड। सही है. So I came to know that some professors shifted to DSAI department. So as a CSE department students, can anyone take their courses? हाँ हाँ, कोर्सेज आप ले सकते हो, पर प्रोजेक्ट्स अभी नहीं ले सकते एज फार एज आई नो। मैंने अपने जूनियर से पूछा था कि प्रोजेक्ट्स लेना भी अलाउड नहीं है, कि अच्छा. डीएसएआई के प्रोफेसर सिर्फ डीएसएआई के स्टूडेंट्स को ही लेंगे, डीएसएआई के प्रोफेसर सीएसई के स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे। पर हाँ, सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो किसी भी प्रोफ के अंदर। हाँ, वो पूल वाला कंसिडरेशन पे आना चाहिए कि ये पूल कंप्लीट हो रहा है, ये पूल कंप्लीट हो रहा है। Hmm. हाँ, डीएसएआई के कोर्सेज लेना आपको अलाउड। So how the current AIML prof in CS departments are? Currently AIML ke, as far as I know, there is only one prof as of now, because अच्छा. most of the AIML profs Shift. have shifted in the DSAI department. Like if you want to do the AIML courses, you need to go to the DSAI department and do the AIML courses. Future of jobs and placements due to AI जो professors first. आपके पास अगर स्किल्स है, जॉब आपकी यही नहीं खा रही, वही. ठीक, आप, हाँ, आप जॉब तो मतलब एटलीस्ट इतना तो समझ गए, आपके पास अगर स्किल्स है तो जॉब तो नहीं खा रही, क्योंकि आपको एआई को ड्राइव करना है। आप एआई को कितना स्मूथली यूज कर सकते हो उसी पे मैटर करता है। इट्स जस्ट लाइक द, जब कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया था, एआई का भी रेवोल्यूशन वही रहेगा। और हम्म. कोई भी प्रोफेसर, और सारे प्रोफेसर ही एमटेक में आपको आईआईटीएम में बहुत ही सपोर्ट करेंगे। लाइक इनफैक्ट अगर मैं स्पेशल मेंशन करूँ, रुपेश नासरे सर इनफैक्ट हमारे प्लेसमेंट में भी हम लोग को देखने आते हैं कि सबका प्लेसमेंट कितना लगा है, कितना हुआ है, और अच्छा. एवरीवन इज फाइन और नॉट। सर हमेशा कहते रहते हैं कि टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स। लाइक हाँ, ये डिप्रेशन, ये ग्लूमीनेस, तो सही है. ये सब बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहता है प्लेसमेंट के टाइम पे। तो हाँ, क्या होता है ना, मतलब उस टाइम पे दोस्तों को हेल्प करना बहुत नेसेसरी होता है, पर उसके बाद अगर प्रोफेसर्स भी आके हेल्प करने लग जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो प्रोफ्स वो आर हाँ, वेरी बहुत सपोर्टिव आई। हाँ, बहुत अच्छा सुनने को मिला मुझे भी. इट्स रियली नाइस कि प्रोफेसर इतना ख्याल रखते हैं स्टूडेंट्स का. या एग्जैक्टली तो मैंने इसलिए नाम लिया सर का, कि हाँ, रुपेश नासरे वही. सर आते हैं हमारे प्लेसमेंट के टाइम पे कि क्या चल रहा है तुम लोग का, सारे सारे दोस्तों का हुआ है या नहीं, अभी किस किस का कहाँ पे चल रहा है। तो सर वो क्योंकि ख्याल हाँ, वो रखते हैं, एक टाइम दिन बहुत आते हार्ड होता है, थोड़ा ऐसे बहुत हार्ड होता है, स्ट्रेस रहते हैं एग्जैक्टली। लोग कि होगा नहीं होगा कब होगा. हाँ ऐसा ये चीज हाँ है. हाँ। तो तो एआई फिर को लेकर डरो मत, जॉब अभी नहीं जा रहे, जॉब इज देयर, आपके पास का स्किल है, आपको कंपनीज उठाएगी उठाएगी। वही हो ही जाएगा. अभी इतना तक आगे गए हो आईआईटी मद्रास तक, तो ये सोचो कि कुछ हाँ, भी कर लोगे, इतना प्रिपेयर करके ही पहुंचो. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। सो टू गेट सीट इन 14th, आईआईटी.
हाँ, क्या? 14, sorry, I cannot answer. I am not a DSAI student. इस हमारे 2024 में ये वाला हाँ, तब आया नहीं है, था ना। सो आई, ये आई डोंट नो। 2023 में नहीं। या So, is it possible to complete MS degree in 2 years? What is the percentage of people, in your opinion, that are able to do it? मैंने 2 का नहीं सुना है, मैंने फास्टेस्ट 2.5 का ही सुना है, क्योंकि अच्छा। पहले ईयर पे आपको 5 कोर्सेज खत्म करने पड़ते हैं, देन सेकेंड ईयर से आपका रिसर्च रिसर्च पब्लिकेशन काम आता है। आप जितनी जल्दी वो पेपर को पब्लिश कर पाओगे, उतनी जल्दी लाइक यू विल गेट द ब्रेक। बट द थिंग इज, 1 साल के अंदर रिसर्च कंप्लीट करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट टेक्स 2 years। वही। लाइक रिसर्च मस्ती का काम नहीं है कि मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ कि आ गया तो खत्म हो गया। लाइक हम्म। अगर आप सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा सकते करंट करंट जिस फील्ड पे आप काम कर रहे हो, देन दैट रिसर्च इज यूजलेस। तो इट टेक्स टाइम। तो एमएस आप अगर कर रहे हो, इतना समझ के आओ, इट विल टेक 2.5 to 3 years। जनरली 3 के अंदर सबका हो जाता है। टू मैंने हाँ। अभी तक नहीं, मतलब मैंने अभी तक जितने सारे एमएस के कैंडिडेट्स के साथ रहा है, या फिर जितने सीनियर्स के एमएस सीनियर्स के साथ बात की, 2 में खत्म नहीं हुआ सबका। एटलीस्ट 2.5 गया है सबका फास्टेस्ट। So, number of hours of TA per week, number of classes per day. 8 hours ऑफ टीएशिप पर वीक, बट जनरली 8 hours नहीं होते। जनरली इट स्टेज अराउंड 4 hours। अच्छा। वो भी आपके टीए पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर आपका टीए बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर सोचो 12 टीएस है, तो किसी महीने में आपका कुछ भी कम नहीं होगा, पर किसी महीने में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो वो फुल्ली डिपेंड करता है आप जिस प्रॉफ के अंदर टीए कर रहे हो उसके पास कितने सारे टीएस है। हम्म। तो बट जनरली इट इज, बट द गाइडलाइन इज 8 hours पर वीक। Like the official guidelines 8 hours per week. And number of classes per day, it again depends on how many classes you are getting. If you are doing 4 subjects, then on an average there will be 4 classes a day. It might not be 4 classes a day. Some day it might be also be 3 classes, but it again depends on how many courses you are taking. So, since there is triple sharing room, can you tell her where can I get privacy in the campus to work on my startup and personal idea? Even the library seemed very crowded in the blocks I saw. फर्स्ट ईयर पे प्राइवेसी तो नहीं मिलेगी। यू विल नीड टू गो टू सम पब्लिक प्लेस, और पब्लिक प्लेस पे तो कहीं पे तुमको इंसान मिलेंगे, तुमको एक सिंगल रूम कोई कैसे फर्स्ट ईयर पे दे देगा? लाइक बहुत ही डिफिकल्ट है। सेकेंड ईयर से यू कैन गेट अ पर्सनल रूम एंड देन थिंक ऑन योर स्टार्टअप एंड पर्सनल आइडिया। फर्स्ट ईयर में तो पर्सनल स्पेस देना बहुत ही डिफिकल्ट है। वैसे लाइब्रेरी में तो साइलेंस ही होता है ना, ऐसे देखा जाए हाँ, तो लाइब्रेरी कर में सकते हो साइलेंस भाई। होता है, भले हाँ। ही क्राउड है, पर क्या ही फर्क पर लाइब्रेरी में फिर से डिपेंड करता है कहाँ पे जा रहे हो। अगर आप कॉर्नर सीट पकड़ोगे, देन यू विल सी मोस्ट ऑफ द कपल्स आर देयर वहां पे, ठीक है। पड़ता। पर तो आपको फ्रंट सीट लेना पड़ेगा। फ्रंट हाँ। सीट पे लेने फ्रंट सीट लेने होगा। फ्रंट सीट पे मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी कोई आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, सब प्रॉब्लम आएगा। तो अच्छा। बेस्ट बेस्ट पार्ट है मिडिल सीट। अब मिडिल सीट क्राउडेड होता है, ठीक है। तो मतलब कहीं पे ना कहीं पे तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो लाइक प्राइवेसी फर्स्ट ईयर में तो पॉसिबल ही नहीं है। Can you recommend some PGs near IIT Madras? I want to avoid hostels due to poor quality mess food. अरे आप पहले आ तो जाओ यार, पहले ही आपने क्या मेस क्वेश्चन थे क्वालिटी, वहाँ। पुअर क्वालिटी बता दिया मेस फूड को। हाँ, घर जैसा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। घर जैसा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर इतना भी पुअर नहीं है कि खा नहीं सकते, मर जाएंगे खाना खाने से, ठीक है। तो लाइक नहीं, पीजीज तो मुझे पता नहीं, आई एम अ हॉस्टेलियर सो आई डोंट नो लाइक पीजीज कहाँ पे है, वे क्या करते हैं। पर मेस बट हॉस्टल का मेस फूड इतना भी खराब नहीं है कि मतलब उल्टी आ जाएगी यार, क्या खिला रहे हैं यार। और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, यू कैन ऑब्वियसली मेल द हॉस्टल अथॉरिटी कि हॉस्टल के खाना सही नहीं है, देन दे विल चेक द मेस फूड। लाइक बहुत सारे कैटरिंग्स फायर भी हुए हैं कि अगर पुअर क्वालिटी मेस फूड दे रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। Right. So, what are the shortlisting criteria for internship at IIT Madras? As internship starts just after entering the college. अगेन a subjective question of a company. It depends on कंपनी किस काम से आई है। अगर सोचो कंपनी को जस्ट इंटर्न्स हायर करने हैं, दे विल हायर। इफ यू एटलीस्ट स्पीक इन द इंटरव्यू, दे विल हायर यू।
बट अगर कहीं पे मतलब बहुत ही क्या कहते हैं heavy criteria कि we need हम्म a research intern kind of like who has done a good amount of research, then they will check about how the quality of research you have done and how good your academics are, what is your CGPA. तो लाइक शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया पूरा ही डिपेंड करता है, क्योंकि गूगल कैसे शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया हो गया आपका पूरा कोड फोर्सेस प्रोफाइल अच्छा है। जैसे हम्म जैसे मैं बता एच एफ टी का ऐसा लिखा रहता है पोर्टल पे कि इफ यू हैव अ 2000 प्लस कोड फोर्सेस रेटिंग देन यू विल गेट शॉर्टलिस्टेड, डोंट वरी। तो लाइक सेम वो फुल कंपनी टू कंपनी वैरी करेगी कि आपका कैसा है कैसा नहीं है। तो लाइक कांट से अबाउट दैट। फिर ओए बिल्कुल। पे भी डिपेंड करता है, वो इंटर्नशिप के लिए भी ओए लेती है, कभी उसका स्कोर भी आता है, तो बहुत फैक्टर्स पर है, वैसा बता नहीं सकते। Okay, so CGPA required for IIT Madras is nothing is written on नथिंग नथिंग admission. नथिंग अच्छा, nothing. नथिंग इज सही है। रिक्वायर्ड। नथिंग इज रिक्वायर्ड। So are there companies which hire only MTech and which pays more to MTech? हाँ, हमारे साल ही नहीं आई एक। ओप्पो इज वन ऑफ द कंपनीज विच डज फॉर दिस, पर हमारे साल ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। हमारे सीनियर्स के टाइम पे तो आई थी। हम अच्छा। लोग का बहुत होप था कि यार कहीं पे अगर नहीं लगा ओप्पो इज देयर फॉर अस। अच्छा। दैट इज हमारे दिल की कंपनी है, पर ओप्पो ही नहीं हाँ है हाँ, इस साल, क्या कर अच्छा। सकते हैं। हाँ। तो ये ओप्पो इज सही वन है। ऑफ दोस कंपनी, सिर्फ एमटेक को ही पे करती है। अच्छा। So what is syllabus for MSCSE? Being a MSCSE scholar, maximum how many course can I take from DSAI department? ये तो एमएससीआईसी का कोई सिलेबस नहीं रहता, वो पूरा आपके गाइड पे डिपेंड करता है। गाइड आपको बता देगी कि आपको ये कोर्सेज करने हैं। आपको 5 कोर्सेज करने रहते हैं। तो गाइड आपको बता देगी कौन से 5 आपको किस किस प्रॉफ के अंदर किस 5 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। और एमटेक्स के पास एक मतलब क्या कहते हैं फ्री 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 स्पेस रहता है कि वो चूज कर सकता है कि वो सब्जेक्ट उसे करना है या नहीं, until unless that pool thing is getting satisfied। पर एमएस के पास ये नहीं रहता, अगर गाइड ने बता दिया ये वाला कोर्स उसे करना है तो ये वाला कोर्स उसे करना ही है। right. So I am interested in AIML but didn't get DSAI department but got offer for MSCSE in computer systems panel. So can I still take courses related AIML? If so, which professor would be better? वापस ऐसा ही क्वेश्चन। Depends, it depends again, it depends on whether your prof will allow it or not, but most probably they will allow it। क्योंकि until unless आपके मेन कोर्स उस प्रॉफ को जिस कोर्सेज पे आपको आपका नॉलेज चाहिए वो कंप्लीट हो रहा है, आप कोई भी अलग कोर्स कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। एंड कैन आई स्टिल टेक कोर्सेज? मोस्ट ऑफ द टाइम यस। अगर प्रॉफ ने बोला कि नहीं अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो, अभी दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं, देन इट इज डिफरेंट। बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर हैं, सिर्फ मैं कैसे बताऊँ सिर्फ एक अच्छे प्रोफेसर को। अरुण राजकुमार सर अच्छे हैं, मितेश खापरा सर अच्छे हैं, बलरामन रविंद्र सर भी बहुत अच्छे हैं, हरीश गुरुप्रसाद सर भी, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं हमारे डीएसआई डिपार्टमेंट में। सिर्फ एक को पॉइंट आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। हम्म। और सब So अलग अलग टाइप से सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मितेश खापरा सर डीप लर्निंग लेते हैं, अरुण राजकुमार सर मशीन लर्निंग लेते हैं, हरीश सर भी जैसे मशीन लर्निंग लेते हैं, फिर बलरामन सर जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग लेते हैं। तो डिपेंड करता है आपका चॉइस क्या है, कौन से टाइप का कोर्स आपको करना है। सही है। So when can MSCSE scholar sit for internship if joined in July 2025? So is it after 1 year or as soon as we join? हम्म, इस, आ, ये तो इसका आइडिया मुझे नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबली आपके गाइड पे डिपेंड करेगा, आपकी इंटर्नशिप पे आपको गाइड अलाउ करेगी या नहीं। कि अगर आपको गाइड बताती है कि आपको अपनी छुट्टी में गाइड के प्रोजेक्ट को ही मतलब कैरी फॉरवर्ड करना है, देन इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंटर्नशिप में बैठ नहीं पाओगे। पर हाँ, इट इज वेरी गाइड डिपेंडेंट कि आपका गाइड कौन है और आपको गाइड अलाउ करेगी या नहीं इंटर्नशिप में बैठने के लिए। अगर गाइड ने अलाउ नहीं किया तो आप भूल जाओ इंटर्नशिप। हाँ, वो तो एमएस का यही चीज रहता है। हाँ। So what does internship season mean? Like, do you have to do an internship in first sem itself? And if not, then what do you even do in the first sem? इंटर्नशिप सीजन जैसे प्लेसमेंट आते हैं वैसे ही कंपनीज आती है इंटर्नशिप्स के लिए, आपको इंटर्नशिप ऑफर करेगी। देन लाइक इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू डू अ internship
और नॉट आपके ऊपर है, बट आई वुड, वैसे मैंने वीडियो के आगे भी बताया है कि इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप करने से आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अच्छा होता है। और व्हाट टू इवन डू, आप एकेडमिक्स लोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा व्हाट विल यू डू इन इवेंट्स। लाइक दैट विल बी द बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। If I choose not to stay in hostel for first year, then can I get single room hostel in second year? And is there any way to get single room hostel in first year with some extra payment? Please mail the hostel authorities. I am not like aware of these facts. कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। So what is the process of admission after COAP acceptance? Is there some short interview or just direct document verification? After you accept, you will get the acceptance mail. Then they will again mail you like before joining. Then it's direct document verification at the campus. So if during the first year of my MTech CSC at IIT Madras, I decide to pursue a research-oriented path, can I transfer into MS CSC? And once enrolled in MS, is it realistic to on offers for PhD programs at top US universities? If so, what steps should I follow to make my application competitive? I think this is possible, but आपका HOD का approval चाहिए. You need to talk to the HOD. I don't have much like insights on this. Yeah, like HOD का permission I think चाहिए if you want to do this. And I don't think you can convert MTech into MS. I think they will convert your MTech into direct PhD. Okay. So how should I prepare for internship OA and interviews? What should I study before joining IIT Madras? ये ये वाला कवर almost हो गया हाँ है। हो गया है ये आंसर. वाला कवर हो गया। So how many companies hire for system role? ये भी डिपेंड करती है कौन सी कंपनी आ रही है। कहीं 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 पे सॉफ्टवेयर रोल्स पे आती है कंपनी, कहीं कहीं पे सिस्टम रोल्स पे आती है। इस साल रिक्वायरमेंट्स सिस्टम के रोल्स ऊपर पे। में भी हर साल हाँ, बदलता. रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, जैसे इस साल जैसे कॉलकॉम ने हायर किया, एनवीडिया ने हायर किया और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने हायर किया सिस्टम रोल्स पे। हम बाकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव हायर्ड ओनली फॉर एसडी रोल्स ओनली। After internship, how to manage academic and internship concurrently? एकेडमिक और इंटर्नशिप आपको कॉन्करेंटली मैनेज नहीं करना। इंटर्नशिप आपको Hmm. समर वैकेशन आएगा, आपको तब करना है इंटर्नशिप, तो कॉन्करेंटली मैनेज का कुछ नहीं है। Right. Safe gate CS rank to get sit in MTech CSE and safe gate DA rank to get sit in MTech AI in OBC category. एमटेक एआई का तो पता नहीं, बट सीएसई का आई कांट से। आई विल से 2023, तो उसके आगे आगे ही आप मान के चलो। तो फॉर इट इज 400 शुड बी मोर देन एनफ, बट अच्छा. एज नंबर ऑफ सीट्स हैव गॉट रिड्यूस, तो आप 300 मान के चलो। How many courses we have to do? ये भी हो गया स्टार्ट में डिस्कस. 9 courses, again saying 9 courses in your entire 2 years, 8 courses in first year itself. At least 8 courses in first year itself. So does IIT Madras have a separate robotics and AI oriented ये हर आईआईटीज में ये सेम क्वेश्चन आता है. पता नहीं कोई सेम इंसान पूछ रहा है शायद. डज आईआईटी मद्रास हैव अ सेपरेट रोबोटिक्स एंड एआई ओरिएंटेड प्रोग्राम लाइक आईआईटी मंडी हैज मोर फोकस्ड ऑन रोबोटिक्स सीवी एक्सेट्रा? इफ यस, हाउ आर द प्लेसमेंट फॉर द सेम वर्सेस प्लेसमेंट फॉर कोर एआई प्रोग्राम? नो आइडिया। आप आके खुद ही डीएसए डिपार्टमेंट में आप बात कर लो, मुझे इतना आइडिया नहीं है यहाँ पे। तो ये रोबोटिक्स मैंने क्वेश्चंस कभी। मेरे दिमाग में आ गए सच में. ये सैंडविच प्रोग्राम रट लिया है मैंने. हर आईआईटी में ये क्वेश्चन आ रहा है. सही हाँ, है. मुझे मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई आई हैव एनकाउंटर्ड राइट नाउ। सही है. अच्छा, पता नहीं कोई तो हाईली एमएस रिसर्च ओरिएंटेड है इंसान. व्हाट आर द कोर्सेज ऑफर्ड इफ देयर इज रोबोटिक्स एंड एआई डिपार्टमेंट इन आईआईटी मद्रास? है कोई ऐसा प्रोग्राम? रोबोटिक्स का मैंने प्रोग्राम नहीं सुना है, मे बी इंटरनली कुछ रोबोटिक्स का शायद कुछ काम हो सकता है, पर आई डोंट नो। ज्यादा मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। If there is any joint PhD sandwich program present in IIT Madras, if yes, then which university? Yes. जॉइंट जॉइंट पीएचडी शायद बलरामन रविंद्र सर के अंडर शायद यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगहम के साथ है। वो हाँ. कुछ अलग प्रोग्राम है, वो पीएचडी प्रोग्राम नहीं, मुझे नहीं लगता वो एमएससी का कुछ प्रोग्राम है। जॉइंट पीएच सैंडविच पीएचडी मुझे नहीं पता।
ये और वही यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंग। सैंडविच। सही है। हाँ मुझे हॉस्टल। सैंडविच एमएससी। हाँ मुझे सैंडविच एमएससी का पता है, बलराम रविंद्र सर का है एक। या फर्स्ट ईयर यहाँ पे करो, देन सेकेंड ईयर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में करोगे। हाँ, अच्छा ऐसा सही कुछ है। है। हाँ तो पर ये जॉइंट पीएचडी सैंडविच, ये नो आइडिया। ये आप मेल करो उस प्रोफ को या फिर उस डिपार्टमेंट में। So how to make most out of MTech? एकेडमिक्स अच्छे से करो। लाइक व्हेन यू आर सिटिंग इन आईआईटी क्लास, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट कि इफ द prof इज लाइक टीचिंग यू वेरी वेल, तो उससे आप जितना ज्यादा आउटपुट ले सकते हो आउटपुट लेने की कोशिश करो। कि क्योंकि ये लोग जो है, द profs who are teaching you in IIT, they are very highly knowledgeable person. Like I can assure you, like they are the best in their fields. Like इनसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता इनके डिपार्टमेंट से। तो जब आप आईआईटी में आते हो, सो मत जाओ क्लास पे, ठीक है? क्योंकि खुद को जीनियस, टीयर 3 में जब खुद कुछ रैंक कर दिया, खुद को जीनियस सोचने लग जाते हो, वो वाला माइंडसेट पे मत आओ, टीचर से रगड़ देंगे आपको। ठीक है? बिकॉज क्योंकि लाइक आपने जिस पेपर को किया है वो उन्होंने सेट किया है। तो हम्म। दे नो हाउ गुड ऑफ अ स्टैंडर्ड यू आर। तो अपनी ईगो को साइड में रख के प्रोफ से लर्न करना स्टार्ट करो, सीजीपीए मेंटेन करो, इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप में जाके भी अपने गाइड से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करना मत छोड़ो, जितना क्वेश्चन करोगे लाइक इट इज मोर बेटर फॉर यू। लाइक इट विल हेल्प यू टू ग्रो एंड लर्न। लाइक अगर क्वेश्चन करना छोड़ दो कि ईगो पे रखोगे कि नहीं मेरे को तो सब आता है, मैं तो सब कर लेगा, तो वो कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो लाइक टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन एवरीथिंग। Like if when you don't understand anything, just ask the professor, so what is this, why is this, why is it? They will give you their entire time in the class just to answer your single question, that I assure you. ये बहुत अच्छी बात है। ask questions then definitely, मतलब प्रोफेसर इतना टाइम दे रहे हैं तो टेक एडवांटेज एंड लर्न मोर एंड मोर। Exactly, exactly, exactly. सही है। तो फिर डाउट्स खत्म एंड मेरे क्वेश्चंस भी खत्म। आई गेस मोस्ट ऑफ आईआईटी मद्रास की चीजें सब बता चुके हो तुम, एंड इट्स रियली हाँ, डिटेल्ड एंड इतना पेशेंटली आंसर करने के लिए थैंक यू, एंड इट विल रियली हेल्प मेनी स्टूडेंट्स। तो वी आर एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच। thank you for calling me. It was a pleasure to be in your video. थैंक यू। बाय।